Hello everyone, good evening and welcome to Go Classes. I'm Pragati Yadav. I have recently joined IISc Bangalore for MTech in Computer Science. Also, I got All India rank 285 in GATE CS and 596 in GATE DA. I was preparing with a full time job for the past 1 year right now. So this is the 10th mentorship session. Let's try to make the next 1 hour productive. So after we get done with this session, we all could go back and study with good energy, right? So whatever query you have, any doubt regarding your preparation journey, or anything you just want to share, or any confusion you have, whatever it is, you all can go ahead, raise your hands, and I will unmute one after the other. All right. So first, I see Siddharth. Hi, Siddharth. I'll unmute you. Yes. Hello, madam. It's Siddharth here. Yes. Yes. Yeah. Hi, Siddharth. Huh. I have few questions regarding my preparation. How to sort whether I should finish the subjects first and then attempt questionnaires, or should I go parallelly with Go classes schedule and try to attempt the questions. These are my questions. Meaning to say, whether I should be with Go classes or I should complete ahead of Go classes. I am preparing Gate DA. Okay, only Gate DA. Okay. So you are following right now, you're confused if you should follow the schedule, or that's your question? Yes, yes, Okay. So is it your first time preparing? yes. It's my first time preparing, and I have heard that they are going to complete the syllabus at the end of November. That's why I'm really very I'm panicking whether I will be able to cover up till November or not, because only 2 months will be there for revision. See, definitely, I think completing syllabus by November is also a good time. Firstly, you have to see, like, whether or not you're able to solve or, keep up with the schedule that is being followed at Go classes. So, what you can do is right now, I would say that if till now you are able to follow the schedule, then stick to it, because see, what happens is that if you're following the schedule, you complete the subjects accordingly, the test accordingly, and also solve pyqs parallelly, then you should not actually wait till November, like that once your entire syllabus is completed, then you start revising. Whatever sequence you follow, I think it would be good if you go ahead with the Go classes schedule. So say you are following that. Now if you have completed one or two subjects, so now when you move to the next ones which are there in the schedule, whenever you get time, 2 to 3 hours, or maybe one second half of the day, or whatever time you get, you should be revising what you have done earlier. So that is a step that you need to take from yourself. I would Okay. definitely not say that you should be waiting till November to complete the syllabus. Ideally, like when I was preparing, what I used to do was that I am suppose completing, I used to do two subjects parallelly. So when those are completed, because initially you can't start solving questions also, because you have just started with your preparation. So Yes. only when you complete at least two subjects completely, then you can decide to solve the pyqs and the subject wise test. Because just solving without preparation is also not of any use, right? Once you have to complete the lectures, because there are multiple questions that are being solved within the lecture also. There are many pyqs that are being taken, or similar questions, right? So you are solving questions along with theory, but only once you complete entire subject, then you should start with the pyq for that particular subject. And revision has to go parallelly. You have to revise your long notes, short notes. Ideally, entire one round of revision has needs to be completed by November already once. So all your pyqs plus revision needs to be completed by November. At least that's the target you should be keeping in your mind. And Okay. if you are able to keep up with the schedule, and you think that like
most probably that won't happen, that you have that see, if you're following the schedule and also doing pyqs and doing the revision, then you won't have that much spare time to cover syllabus even before that if you're starting now. So for sticking to the schedule is good enough. Just make sure to keep revising the entire long notes along with, whenever you get time, before you completely forget it. You have to keep be in touch with everything. And now, and one more thing, as you said about PYQs, in DA we don't have generally PYQs because it's only 3 years the examination has been done. Right. So, how you suggest that I should attempt question? How, matlab, what type of questions I should get? Matlab, from where should I practice? Actually, this is the main. See, for practicing, for mathematics, I think you can cover CS PYQs also for linear algebra, probability, DBMS for these subjects. Apart from that, I feel the course is also, math, be it mathematics or even say machine learning. Right now, I'm also doing machine learning from the DA course. So I see that many questions are being taken in the lecture itself, right? Oh, So just firstly, now that you're just starting, before panicking about the questions that you're supposed to do from where and how many questions you have to complete, firstly focus on understanding the subjects well, because watching lecture is also a very important part of the preparation, right? Questions come later on, and I see that there are multiple questions that are being done in every lecture, every topic. There are at least 15 to 20 questions. I'm doing machine learning, so I see it there. For linear algebra also, probability also, because these are maths, right? You can't understand without questions. So I think enough questions are being covered in the lecture. Whatever material is being provided to you, be it the weekly quizzes or the subject wise test or any dpps you are getting, so you have to trust the resource. Firstly, don't overthink it, because if I don't you will go in the wrong direction if you start questioning things. So you are preparing for from go classes, I would say trust the resource. It is good. Focus on understanding the lectures. Once you get the hang of it, once you yourself start enjoying the lectures, once you feel that now you are understanding everything, then you can solve questions alongside only whatever comes in the way. Like if there is any weekly quiz after 5 to 6 lectures, any test that is there, so focus on that. okay. PYQs Uh, also, whatever 1 2 year PYQ there is for CS, also say you have done BBMS, then you can do the PYQs of CS also. I think that's already provided in the PYQs at go classes also, yes, yes, right? and one more thing that I Yeah. want to state that while doing the DPPs, what Mm. I realized that like in linear algebra and in probability, we didn't receive any DPPs related to the module two of these subjects. Okay. So Yeah. we don't have that much of DPPs, I would say. Okay, have you completed the module 2 for both of these subjects? Yes, I have. Okay, so whatever like till now, if you have solved the DPPs which have been provided till now, I would say that just keep on like revising. There are enough questions. So for Yes. now, if you feel that you are good with whatever questions or quizzes or PYQs that were provided for LA and probability for DA, or Mm. the questions that are taken in the lecture also, if you feel that you are understanding it, then for now move ahead with the next subjects. There will be dpps coming along the way, and even I think you will get to learn a lot when you start giving full length mock test. There you will get really good quality questions. The level of mock test here is really good. Even the aimts are of very good level. So you can start, you will get to try tricky questions later on also. Firstly, just focus on understanding the lectures. I think for now, if you are able to like say LA module 2, if you are able to understand all the lectures, the questions that are being solved in the lecture, if you are able to properly understand that, if you are able to visualize it, then for now you can move ahead, and you will be getting good questions when the full length mock test and AIMTs will come. Okay. Okay. Yes. And one more thing I just want to ask, when should I start giving the full length mock test? Matlab, what should be the target?
I would In say which when, month? yeah, I would In which say, month should I huh, start? once you complete about 80% of your syllabus at least, Mm-hmm. then you should start giving full length mock test. I mean, I think if you start giving full length mock test from November also, then that is not too late. I think November is a good time. It's actually very good if you are able to start giving full length mock tests from there on. And another thing I would tell you is that with mock tests also, it doesn't matter the number of tests that you're giving. You have to really understand that lectures are the most important things, because these subjects are a bit challenging, because they are slightly advanced. If you go on the, not really tough, but it is something different. So when you do machine learning or uh, s- you know LA, to chalo still module 2 is fine. Like now I'm doing machine learning, so I can talk about that. That I do find it a bit tough, so there is a lot of effort that needs to be put. Sometimes I have to rewatch a lecture, or go through the annotated notes multiple times. So for now, I would request all of you to really focus on understanding the lectures. That should be your first priority, because don't think about questions, wo apne aap ho jayenge. Just follow the lecture very very thoroughly with full focus. You should be understanding everything, and you should be enjoying it, most importantly. Don't worry much about questions. uh, just trust the resource that you're following. Okay. That's what I And would just suggest. Yeah. yeah, and just one person question, as you have prepared for GATE and you were doing it with your job, I just want to know, matlab, how much time I should focus in one go, matlab, how many hours I should focus on one go and then take a break. Uh, the- See so now. this is Yeah. what way I should do, because See, my attention right. span is really very low, I would say, truly. Okay. So that I you still have a lot of time. So I would say that you should push yourself rather than just accepting that, I am not able to sit for longer hours. It's very important that you push yourself. For my preparation journey, since I had even less than a year, the only thing I don't really recommend any that this is the schedule or this is the timetable. Mm, There's just one strategy, that study as much as you can. mm, So the more you study, that's the better. So if you are able to sit for like 12 hours a day, that's good. Like I used to, for in weekends, I used to study the entire day from. So my routine was like, early mornings I could focus really good on lectures, when I used to wake up with great motivation. So say I am sitting at around 6 a.m., 3 to 4 hours I was able to sit. And then you can take 1 or 2 hour break, like accordingly. Just don't waste time, I would say, because if you cut on your phone, you don't waste time on your phone. That's the most important thing actually. I would say that you should not be, for whatever months are left, you should not be using phone at all. You should not be on any social media. You should not be scrolling through reels at all. Like, it should be zero, I would say. I wouldn't even ask you to reduce it, just completely eliminate that, because this 1 year is really important. Now that you are focusing on, all of you whoever have joined and whoever is preparing, so this year is really important. What opportunities you get after gate is, it's crazy. You get a lot of opportunities. So just because of, you couldn't more attention on, you were on your phone, so every hour you waste, it costs you a lot. I'm telling this from experience. So just make sure that you are not using phone at all. Then automatically you will see improvement. If you have to take breaks, do things that would actually help yourself. You can take a nap, you can go for a walk. If you like any sports, you can give 1 hour to that in a day, whatever makes you feel better. But make sure that your breaks are not something which even drains you further. So if in your break think that, okay, I'll see phone for half an hour, that actually reduces your energy and even drains you more. So if eliminate that thing, and don't stick to just one schedule. Just keep it in your mind that I have to complete this. You All you should be thinking about is that I have to complete these many subjects in this month, or for the over the next 2 months, and you have to plan what you have to do next. So you just have to be thinking about all these things. And maybe you should, focus on healthy lifestyle also, in the sense that eat good food, food that gives you energy, not uh, you know
outside food, I would say. All these things are very small, but they do matter in your focus and learning. These are small things, but they matter. So once you think in your head that this one, once you know sit and realize that this 1 year is really so important for you, and you just have to study. That's all, yeah, that's what you have to think, that whenever you can, you will study. Whenever you get time, if you have a bit busy day at college or work, that's okay. Whenever you get back and you get to study, do it. And focus on taking breaks also, breaks as in terms of relaxing. So I would say that sitting by yourself for some time, going for a walk or taking a nap, these things are also important, but don't do things that further drain you. Okay. And at a stretch, you were studying 3 hours and then you are taking break, correct? Yes, yes. Like I used to go for a 10-15 minutes walk as a ghar mein hi, from one room to another. But yeah, 10-15 minutes I used to get up. That's normal. Or sometimes half an hour. Whenever you feel like ki ab, you know, you can't, and it will increase automatic, like gradually it will increase. So suppose for now, if you get exhausted in half of the lecture, like आधा ही lecture देख के आपको लग रहा है कि you are not able to focus, then just try to push yourself. ऐसे आपको mentally ही सोचना पड़ेगा that okay, I will not get up before I complete this one lecture. तो gradually it will improve. It's not like today you decide and एक बार में you will study for 5 hours. It gradually improves, and it will, if you put the effort, it will. And it's important also. So I will definitely not say ki if you're studying for 1 hour and you feel the need to take a break, then that's good. That's definitely not good, and you need to work on this aspect. And it will happen. It usually happens with everyone, because in BTech days, you know, we are used to attending, because if you're especially from tier 3 colleges, we are not used to that rigorous academic schedule. So once we start preparing for gate, it is challenging for everyone. It was for me also. But when I used to see that my screen time is so much and this is the amount of time I'm spending on YouTube or whatever, I sat by myself and I decided that I won't. And that's what you have to do. You have to be mentally very strong. Thank you. That's all. That's all. Okay. Thank you so much. All right. Okay. Prakash, I'll unmute you. Hi, Prakash. Good evening, ma'am. Hi, good evening. Hi, good evening. Ma'am, actually, I wanted to ask, I've currently completed two subjects, linear algebra and probability and statistics, but I am not able to do question practice mu much. I mean, the DPPs, they are getting piled up, and I'm concurrently doing revision of the last subject which I completed so if I was doing probability, I was revising and making short notes for LA. So my question is, as I'm in the last year, so I have currently many things going on in parallelly, like minor, major projects, placements, and college exams. So according to my calculations, I will be able to complete the entire syllabus, I mean thoroughly the videos, by November last. So I'm very, you know, kind of scared how will I get time for the revision and the test, mock test. So I'm kind of confused how to manage that. Are you preparing for Are you CS or preparing for DA? CS or DA? DA, ma'am. Okay. Yeah. Okay. Just a Okay. second. There's Just some a issue with the second. There is audio. some issue with audio. Okay. So Okay. I think if So you're able I to think if finish you're the able to syllabus, finish the syllabus, my voice is my echoing. voice is echoing. No, ma'am, it's fine, I guess. For me, it is. For me, it is. Wait. Wait. Okay. Sorry for the delay. Yeah. So I was saying that if you think that you will be able to finish your syllabus by November, that is good. Actually, most of the aspirants, I feel, you know, we do decide that we have to finish our syllabus by October. I mean, usually it does stretch to November, right? That is fine. But
the condition is that if you're saying that you will be able to finish the lectures by November end, that should mean that you are also completing the PYQs by then, and you're also completing at least, at least one round of revision for all these subjects by November. Now, suppose you, whatever subject you have picked, okay, you have to, I think, automatically after a few weeks, once you move to other subjects, you start getting a feeling that whether or not I remember that subject. Suppose you have done LA and now you're on machine learning, then you might feel, or suppose you're doing DBMS, then you might feel that, I don't remember LA now. So once you, after a few weeks, when you start feeling that you don't remember the earlier subject, then that's the time you should give. You don't have to really plan it in your calendar that this is the particular day, because then you're forcing yourself. You have to study all the time, but you can keep it a bit flexible, the schedule. So whenever you are feeling that today you are in a mood of revision, you can pick the entire notes, because one time revision of the long notes is also extremely important. There are multiple things and questions can come from any of those. So short notes, I think you can revise towards the end, maybe when you're doing revision in December or something. But before that, by November, you do have to revise the long notes, because especially if this is the first time you are studying a subject, there is a very high chance that you will forget it. So when you move to the अदर सब्जेक्ट्स जो भी पहले वाले हैं, उसके लिए यू हैव टू टेक आउट टाइम फॉर रिविजन. यू कैन सपोज आप मंडे टू फ्राइडे आप अपना नॉर्मल शेड्यूल फॉलो कर रहे हो, देन सैटरडे यू कैन कीप की दिस डे आई डोंट हैव कॉलेज, आई एम रिलैक्स, सो दिस डे आई रिवाइज द ओल्डर सब्जेक्ट. ओके, और अभी क्वेश्चंस के लिए व्हाट फॉर डीपीपी, और अगर क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग भी इम्पोर्टेंट है, तो इफ़ यू आर एबल टू वॉच द लेक्चर्स प्रॉपर्ली, क्योंकि लेक्चर्स तो फर्स्ट प्रायोरिटी है, राइट? सिलेबस आपका खत्म होना चाहिए. अगर आप नवंबर तक सिलेबस कर रहे हो और थ्योरी भी रिवाइज कर पा रहे हो, देन ऑल्सो यू हैव फुल 2 months टू प्रैक्टिस ओनली क्वेश्चंस. ठीक है, तो नवंबर तक भी कर रहे हो तो इट्स गुड, बट यू हैव टू डू इट एक्सट्रीमली प्रॉपरली. अगर आप लेक्चर्स अभी देख रहे हो, यू कांट अफोर्ड टू वॉच द सेम लेक्चर अगेन. तो इन द सेंस कि आप एक बार पढ़ रहे हो तो एक बार में ही ऐसे पढ़ो कि आपको सब समझ आ जाए. तो अब उसके बाद इफ यू आर, आपने एक दो सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए हैं, तो नाउ आप अपने डे में से यू कैन पुट 2 hours. Like for me it was usually at night, because रात तक I used to get exhausted and I didn't feel like studying anything new, because that required a lot of focus. तो उस टाइम पे I used to solve questions. I had fixed कि 10 से 12, 10 से I did like it used to start at 10, because आपको I think starting time एक fix करना पड़ेगा, so that you get in a routine. So 10, but ending time was not fixed. So 10 से लेके till whenever I felt I can go, I used to solve questions, because questions may, if you're doing maths, for me at least, I could play some music in between, or it was a bit relaxed than watching lectures. So you not just you can, you have to fix, at least you can start with 1 hour if you, because ऐसा भी नहीं कर सकते कि आप क्वेश्चंस ट्राई करने में आप फिर लेक्चर्स को टाइम नहीं दे पा रहे हो फर्स्ट, क्योंकि अभी फर्स्ट फेज में आपको सिलेबस कंप्लीशन भी इम्पोर्टेंट है. तो इफ यू आर एबल टू set time for your syllabus completion for lectures, then उसके बाद जो बचा हुआ टाइम है उसमें से you can start with 1 hour a day for questions, and वैसे you can go on, Prakash. Okay, ma'am, I have one more question. As I watch videos, I make notes and I make it very thoroughly so that next time, if I have to revise any topic, I don't have to watch the video next time. So for a 2 hour video, it takes me around double the time, 4 hours. So should I do that or should I try to minimize that No, I note don't think process? you should be that you should be making the entire notes, because why don't you refer to the annotated notes that are given? Actually, ma'am, they are kind of messy and hard to revise. That's why. See, for that, I'll suggest that suppose you watch a lecture, right? As soon as the lecture is finished, so आप 2 hours का lecture finish कर रहे हो, as soon as it's done, what you do is uh, go through the annotated notes, because आपने lecture अभी अभी देखा होगा, you will be able to understand the lecture, the slides very easily, because वो होती है around 100 200 pages की और 80 something. But एक बार आप पढ़ लो तो उसके बाद आपको बहुत कम टाइम लगेगा रिवाइज करने के लिए. And ma'am,
Just a second. You are mute. Okay, so yeah. Okay, so yeah. And one last question. There are so many different questions like quizzes, DPPs, and topic-wise tests, and full-length subject tests. So, on which questions I should focus more? That these should I should finish first, DPPs, Okay. or should I start giving test first? Okay. So, firstly, you should be focusing on PYQs. Sorry, again, you were preparing for DA? Yes, ma'am. DA. Okay. So, whatever PYQs there are, okay, firstly, I also about the lecture part, I wanted to emphasize that आपका schedule already hectic है, right? You are, since you are in your last year of college, so definitely आप जो notes बनाने की strategy है, that won't be good for you. ठीक है? So, just I would really say that इट्स नॉट नीडेड अगर थोड़ा भी नीडेड होता तो आई वुड हैव आस्क्ड यू टू गिव टाइम टू इट क्योंकि आप अपने से नोट्स बना रहे हो उसमें से भी मे बी एक दो चीज़ें मिस हो जाएं बट अगर आप एनोटेटेड नोट्स देखने की हैबिट डाल लेते हो अभी स्टार्टिंग से देन यू विल नॉट बी मिसिंग अ सिंगल पॉइंट लाइक नाउ व्हेन आई रिवाइज फॉर एग्जांपल एलए के अगर मैं नोट्स देखूं इट विल टेक मी मे बी हाफ अ डे टू रिवाइज एंटायर एलए सब एक एक पीडीएफ देखने के बाद भी because उसके लिए what you have to do is once you finish a lecture don't sit with with the thing to make notes आप बस एक नोटबुक पेन ले एक रफ नोटबुक एक पेन लेके बैठो एंड जस्ट वॉच द लेक्चर अंडरस्टैंड एवरीथिंग प्रॉपरली क्योंकि सर क्या करता है पहले उन्होंने एक टॉपिक बताया फिर उसका एग्जाम्पल आता है तो आप वहां पे पॉज करके एग्जाम्पल करने का ट्राई करो ठीक है उसके या फिर मे बी फर्स्ट एग्जाम्पल ना हो तो सिमिलर दो तीन होते हैं इन अ लेक्चर तो आप ऐसे सिर्फ एट द टाइम ऑफ वॉचिंग लेक्चर आप सिर्फ क्वेश्चंस करने पे फोकस करो और एज सून एज अ लेक्चर गेट्स ओवर आप इंस्टेंटली वो नोट्स नेक्स्ट वाला उसका नोट्स का आता है आप पूरा डाउनलोड करो एंड गो थ्रू इट और व्हाट यू कैन डू इज कि अगर आपने डिसाइड किया आपकी 1 2 3 आप 3 लेक्चर्स देखोगे तो आप बैक टू बैक तीनों देख लो उसके बाद तीनों की पीडीएफ डाउनलोड करो और एक एक करके फर्स्ट किया उसे क्रॉस करो सेकंड थर्ड उससे आप एक बार लेक्चर देखने के बाद जब वापस रीड करते हो ना तो आपकी मेमोरी भी बहुत स्ट्रांग हो जाती है लाइक यू आर मोस्ट मोर लाइकली टू रिटेन दोज टॉपिक्स ठीक है तो आई डेफिनेटली विद द लिमिटेड टाइम यू हैव डू नॉट गो ऑन मेकिंग लॉन्ग नोट्स दे आर मेसी ओनली इफ यू लुक एट देम लेटर अगर आप लेक्चर करते के साथ ही वो देखोगे देन वो आपको मेसी नहीं लगेगा ऑल्सो अगर आप नोट्स ना बनाने का सोच के सिर्फ लेक्चर बहुत ढंग से समझोगे देन आपको अपने आप वो नोट्स इजीली समझ आएंगे तो नोट्स तो आई वुड से दैट यू शुड नॉट बी मेकिंग एट ऑल एंड देन अबाउट prioritizing questions pyqs are the most important ठीक है whatever pyqs are there make sure to do each and every one of them and understand बिल्कुल अच्छे से so if you're not able to get a pyq look that up on gate overflow उसके जितने भी अप्रोच है बेसिकली pyqs आपको बिल्कुल एंड टू एंड बिल्कुल अच्छे से आने चाहिए सारे uh, उसके बाद आप जो लेक्चर के साथ में वीकली क्विज है या फिर जो भी लेक्चर के बीच में क्वेश्चंस आ रहे हैं राइट इफ देयर इज एनी टॉपिक वाइज टेस्ट आफ्टर ए लेक्चर एनी वीकली क्विज जो मॉड्यूल के बीच में है मेक श्योर टू डू दैट आपका मॉड्यूल पहले पूरा कंप्लीट होना चाहिए जैसे ही मॉड्यूल पूरा 100% कंप्लीट हो रहा है विद ऑल द वीकली क्विजेज एंड एवरीथिंग जब वो पूरा 100% आप मॉड्यूल कंप्लीट कर रहे हो तो पीवाईक्यूज भी मेक श्योर कि उसके साथ पीवाईक्यूज कंप्लीट हो उसके बाद यू कैन मूव टू डीपीपीज एंड अदर क्वेश्चंस ठीक है क्योंकि अभी क्वेश्चंस अगर सारे ना भी हो रहे हो लाइक इन द वर्स्ट केस अगर आप अभी सिर्फ लेक्चर नोट्स ही कर पा रहे हो और पीवाईक्यूज ही कर पा रहे हो तो दैट इज ऑल्सो फाइन क्योंकि अगर इसके साथ आपका सिलेबस अक्टूबर तक खत्म होता है या नवंबर तक तो चलो सारे सब्जेक्ट्स के नहीं बट कुछ के तो आप डीपीपीज और सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज टेस्ट कर ही लोगे राइट तो जितना मैक्सिमम हो सकता है डू दैट लेक्चर्स मॉड्यूल्स पीवाईक्यूज ये तो नॉन नेगोशिएबल है यू हैव टू कंप्लीट इट बाय नवंबर उसके अलावा आप जितने मैक्सिमम सब्जेक्ट्स के कर पा रहे हो सब्जेक्ट वाइज डीपीपीज and all these tests then it is good क्योंकि उसके बाद once you start giving full length mock ना then या फिर जब AIMT होना start हो जाता है then you don't get time to do these weekly and subject wise test but इनका level बहुत अच्छा होता है like I had given for CS so उसके लिए तो I can say even if I have like a subject like C programming if मैं उस पे भी sure हूँ कि C तो मुझे पूरा आता है but still after the subject wise test जो मैंने उसका दिया था
तो आई लर्न अ लॉट, क्योंकि आई फील दोज क्वेश्चंस आर वेरी ट्रिकी। और कुछ भी अगर गेट में न्यू या फिर डिफरेंट चैलेंजिंग कुछ आता है एग्जाम में, तो अगर आपने ये क्वेश्चंस कर रखे हो तो यू गेट अ लॉट ऑफ एज, क्योंकि फर्स्टली यू आर मोर कॉन्फिडेंट। आप कोई भी ऐसा डिफरेंट क्वेश्चंस देख के यू डोंट पैनिक। सो गिविंग दी सब्जेक्ट वाइज फॉर सी एस, आई एम सेइंग, बिकॉज उसमें काफ़ी थे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट एंड टॉपिक वाइज। सो दीज क्वेश्चंस हेल्प immensely, like in a very good way. तो मैं सबके नहीं दे पाई थी, बट जितना मैंने दिया था it helped me a lot. तो like my rank is also still, it was 285. So अगर आप जितना ज़्यादा दोगे, it will be, hopefully a double digit, single digit rank for all of you. So हाँ, to summarize, do the modules properly, जितने भी questions आ रहे हैं, and for you Prakash, don't, or for anyone, कि long notes पे time मत waste करो, just focus, just sit with the mindset कि आपको lecture समझना है। उस माइंडसेट उस माइंडसेट से बैठो, डोंट थिंक अबाउट क्वेश्चंस, पीवाईक्यू एंड ऑल दैट व्हेन यू आर वाचिंग अ लेक्चर। उसके बाद पीवाईक्यूज कंप्लीट करना है। वंस यू आर डन विद द सब्जेक्ट, आपको मेक श्योर करना है कि नवंबर से पहले आप सारे सब्जेक्ट्स एक बार फुल्ली रिवाइज कर रहे हो, एंड देन यू कैन स्टार्ट। जो भी उसके अलावा एक्स्ट्रा टाइम है, यू हैव टू डू डीपीपीज। आई एम नॉट सेइंग कि ये आप देख लेना, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिक्स करना एक चीज होती है, बट to get a top rank, you have to solve these questions because they are of really very high quality. And once you start giving mock test up full length, you will not be getting time to solve these questions, these dpp's, which are very important. So try करो कि आप इस पे miss out ना करो, and आपका सब कुछ complete हो जाए with the time. And schedule का भी कुछ नहीं है, just study जब भी आप, whenever it is possible for you. Study all the time basically. This 1 year, what आपको और क्या ही करना है, all you have to do is study. So do that. Okay, ma'am. Thank you. Okay. Yeah. uh okay, Shri, I'll ask to unmute here. Hello. Yes, hi. Hello. Hi. Good evening, Pragati. Yes. I'm Shri and I'm working in Cognizant presently. Okay. And I've given GATE last year. I just managed to qualify. I got a score of 375 and I thought कि वापस से आज इस साल भी दे दूँ. I mean next year के लिए भी दे दूँ. So I Right. started my preparation like right now again. And I have few weak subjects and I have certain strong subjects. And Okay. I think I have finished my syllabus. I mean, in my preparation, like I broadly have finished my syllabus, but I'm lacking few certain topics. My means मेरे को थोड़े subjects में I mean the specific क्या बोलते हैं उसको टॉपिक्स पे कुछ कुछ डाउट्स हैं तो इसलिए मैं आई थॉट कि अच्छा ठीक है व्हाटएवर हैपेंड हैपेंड वापस से देती हूँ तो आई जस्ट वांटेड टू नो कि आपने एग्जैक्टली कब शुरू किया था आपका प्रिपरेशन like because working and all these things now so it becomes Right. hectic so how did you manage and when did you exactly finish your syllabus alongside Okay. And Shri, like, were you preparing from Go classes last year? no I was preparing from knowledge gate Okay, yeah so like one thing I would highlight is that initially, because I was not enrolled in any course, so when I was studying and I used to think कि I've completed my syllabus. What happened? So I started in June or July something. So when I got my placement was done, so then I was not happy with it. Then I decided to appear for GATE. Now a bit background is that since I graduated last year only, a few core subjects of mine like operating system, computer network, DBMS, C, DSA. So like basics I knew, right? It was not like it's completely new to me, because I had studied these subjects in college. So once I studied from YouTube, completed the playlist, whatever, and when I appeared for the first mock test, I purchased the Go Classes test series in October. And when I gave the first full length mock test, I scored only 28, and that was very surprising to me. So when I so the questions I was not able to solve, I just randomly searched on YouTube. So then I discovered the lectures of Go classes, and I identified that there is a lot of gap, for certain subjects. Like for me, C, DSA, computer networks, and operating system. Yeah, these four were strong subjects for me.
strong for me. But still, even topics like multi-level paging, inverted paging, threads. So I used to watch. There are there were multiple marathons, around 44 to 50ish lectures on Go classes, each of about 3 to 4 hours. So of such, topics. As I said, I used to think that operating system is very strong for me, but once I watched that lecture of thread and then multi-level paging, then realized that I didn't know much. And after every lecture, I used to literally be shocked that I gained so much knowledge from just one session. So these lectures, for example, compiler design also, so every lecture was 3 to 4 hours long, and I used to watch on 3x speed, because since I found these in October, November, so I didn't have much time to um, like, I was basically panicking because I didn't have a lot of time. But whatever rank I got, I would say, is because of these lectures. Because initially, whatever I had learned is okay to just qualify gate, I would say. But these lectures, there is a lot to learn. So I would suggest that now that you have enrolled in the course, if possible, suppose that you think that you are good at operating system, so I would still say that you should, if not the entire long course, I think there is a compact course also. So whatever, I would say that not to make any notes, nothing, just because you have a lot of time. If you are almost done, if you think that broadly you have covered all the subjects, you still have a lot of time before gate. So you should not be taking risk at any given point. I feel like once you know the basics, it will be a lot easier for you. So what I would suggest you doing is that you still watch the lectures once. If you feel like you are, you can watch it at 2x or 3x speed. You don't have to make any notes, so that won't take much time. Plus, that would be a good revision for you also, because revision is also a must. There are multiple formulas, there are multiple ways of solving particular questions. So you can pick a subject, any, and then you can watch the entire lecture. If you understand everything, then it would be a good revision. Otherwise, for some subjects, so if you are watching Go classes for the first time, then there will be a lot of things that will be new for you. Apart from that, what you can do is that you now that you have covered most of your subjects, you can get a whole PYQ set up with subject wise and topic wise questions. So you can, suppose you're revising a particular lecture from Go classes, the entire module or compact course or marathon, whatever you choose to do, try solving the PYQs, because if you're able to solve around 60-70% PYQs, you will get an idea whether you actually have the knowledge or not. So initially, तो if you're not able to solve PYQs, that's okay, because आप probably gate देने से लेके अभी तक नहीं पढ़ रहे होगे, then you माइट हैव फॉरगॉटन थिंग्स। तो आप रिविजन कर सकते हो सब्जेक्ट का, कि आपने 2 दिन दिया, लाइक मंडे ट्यूसडे, you after coming from work, you give to revision to just one subject, okay, just for revision. Then you start solving the PYQs from a book proper, एक एक क्वेश्चन या फिर PDF जहाँ से भी कर रहे हो. If you are able to solve most of them, you can tell yourself that okay, I know this subject. You can check it right in your notebook. देन यू मूव टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट, और अगर किसी में आपको लग रहा है कि बहुत सारे PYQs नहीं हो रहे, देन यू शुड वॉच द एंटायर लेक्चर फुल कंप्लीट, बिकॉज सर्टेन सब, लाइक फॉर एग्जांपल कंपाइलर डिजाइन जैसा, तो आई डेंट फाइंड एनीवेयर जहाँ से भी मैंने पढ़ा था, बहुत ज़्यादा ही गैप था. लाइक आई डेंट इवन कवर हाफ ऑफ द थिंग्स, एंड आई वाज थिंकिंग कि आई हैव ऑलरेडी डन दिस सब्जेक्ट. एंड इवन for topics like DSA, I felt that I am very strong at it. But still, in topics like even trees, graphs, or any particular algorithm, there was so much to learn. That too, I was when I was studying from YouTube free lectures. So you have a lot of time, you should definitely be giving it to watching those lectures. They will be very beneficial for you. If not the long, then compact wala, you can go ahead and see. तो एज आई सेड, अगर आपको टेस्ट करना है, आप PYQ सॉल्व करो नाउ. अगर आपसे PYQs हो रहे हैं सॉल्व, दैट मीन्स वो भी सारे तो नहीं होते स्टिल, अगर आप जितना भी अच्छे से कर लो, बट अगर आप 70-80% कर पा रहे हो PYQs, मोस्टली हो रहे हैं आपसे. तो जो नहीं हो रहा है वो आप यू कैन गो लुक इट अप, और उसी टाइम प्रॉपर समझ लो, उसे मार्क कर लो जो आपसे नहीं हो रहा है फॉर डिवीजन लेटर. उसके बाद जो भी मॉड्यूल के बीच में सब्जेक्ट वाइज एंड टॉपिक वाइज टेस्ट होता है, पहले टॉपिक वाइज होता है, देन वो कंबाइंड सब्जेक्ट का होता है. तो आप फिर वो
दो, एंड डोंट गेट डिमोटिवेटेड, बिकॉज आई फील लाइक कि उसमें अगर आपने पूरा सब्जेक्ट कर भी लिया है तो भी उसमें एक बार में सारी चीजें नहीं होती हैं इन दो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, क्योंकि वो बनाई इसलिए दैट यू लर्न न्यू थिंग्स. They are not to test your knowledge, they are so that, yes, some portion of testing your knowledge, but these are so that you understand many new concepts and many new things. ठीक है, like from those tests and from the questions that were there in mock test, तो गेट में जितने भी ट्रिकी क्वेश्चंस आए, कुछ तो इजी होते हैं, जो ट्रिकी वाले होते हैं उसमें से काफी सारे आई हैड ऑलरेडी सीन इन द mock test and subject wise test. This I'm being very honest with my experience. So these questions are extremely important. You will learn a lot. So that's the strategy you can follow. Again, to summarize, firstly you revise in 2 to 3 days. Agar if you think that you're really good at those subjects, then you do 2 to 3 days or one whole weekend should be enough for you to revise, or whatever time that's comfortable for you. Then you go on to the pyqs. If you're able to solve the pyqs, then आप directly uska topic wise and subject wise test karo, and parallelly ही next subject करना. Like don't do this full cycle of revision questions for one whole subject and then move to the next. अगर आप एक का आपको थ्योरी सॉर्टेड है, देन आप नेक्स्ट के जो आपने बोला कि आपके कुछ वीक सब्जेक्ट्स हैं, सो दैट आई वुड सजेस्ट कि आप पूरे लेक्चर्स देख लो. इट विल नॉट टेक दैट मच टाइम, बिकॉज यू हैव टू जस्ट सिट विथ योर, like, you just have to sit focused. आपको बस अपना brain on करके बैठना है. You don't even have to make lectures, because I feel like that is a bit of time waste. A maximum you can think of making short notes. तो watch the lectures and parallelly फिर आप questions कर सकते हो. Even at office, if at work it is possible for you to take out some time, then at work also you can maybe you can download a PYQ booklet for one particular subject or topic, and when you are at your work you can open your phone and notebook and diary पे phone से आप देख के question solve कर सकते हो. Like whatever way you can utilize your time, that is what I used to do in office. I used to solve questions and PYQs, and घर आके I used to watch lectures. So if that is, I know that is difficult definitely at work also, especially the more the more time you have spent at work, you get more responsibilities. I was just a fresher last year, so starting ke 2 3 months was just training, and then jan mein to I took almost 20 days off. So that's how I used to manage, but it will still be possible, because it's not like you're preparing from scratch. So definitely that you will be able to do it. बस try करो कि office में if you are able to get some time out, and घर आके भी you have to be you know very रेगुलर विथ इट. यू हैव टू गिव 3 to 4 hours, एंड वीकेंड्स तो फिर आप जितना यूटिलाइज कर सकते हो. एंड ऑफ कोर्स देर इज अ लॉट ऑफ sacrifice also that comes with it, because for the past 1 year I did not used to go in any outings or parties. So these are little small sacrifices that you have to do, but I feel like you will do good, since you have already you have the basics. So that was pretty much the same case for me, Shri. Yeah, Pragati. And one more thing. Yeah. What I mean, like, I just wanted to know, how did you manage your maths? I mean, like, did you finish your mathematics long ago, or like, did you do it subjectly? I mean, like, subject wise, or like parallelly along with one subject or something like that, along with a Yes. subject and maths like that. Yes, so definitely maths. I think the rest of the 9 subjects are okay, but this discrete, like engineering mathematics, is a very huge topic. So I would suggest कि इसमें multiple topics होते हैं ना, like there is group theory, there is graph theory, then there is LA probability. तो like suppose आपने operating system पूरा पढ़ लिया, then आप, because these are small topics, so they won't take you much time. So just to feel motivated, I wrote all these topics in a diary, right? जो भी 7 8 है discrete mathematics में and engineering mathematics में जितने भी हैं, तो you will find कि LA, probability, calculus, these are still a bit you know लेंदी इन टर्म्स ऑफ, यू नीड टू अंडरस्टैंड अच्छे से. बट डिस्क्रीट मैथ्स में बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो काफ़ी छोटे छोटे, लाइक देयर सेट्स एंड रिलेशंस एंड ऐसे करके टॉपिक्स हैं. तो यू कैन डू इट टॉपिक वाइज जब भी आपका मन करे. अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहे हो, आप बोर हो गए, देन यू कैन गिव 2 hours to wait. Yeah, so you can give 2 to 3 hours to, has someone started sharing this?
whiteboard. या सॉरी या तो मैथ्स का आई वुड सजेस्ट कि आप सब्जेक्ट्स के बीच में, क्योंकि आई यूज्ड टू फील कि मैथ्स थोड़ा फन भी है क्योंकि इतना कॉन्सेप्चुअल बहुत एक्चुअली डिस्क्रीट मैथ्स में तो वैसे है कॉन्सेप्ट्स, बट ठीक है बिटवीन सब्जेक्ट्स यू कैन पुट इट टॉपिक वाइज, क्योंकि पूरा एक करना ऐसे डिस्क्रीट मैथ्स देन इट इट विल टेक यू अ वेरी लॉन्ग टाइम फर्स्टली, तो वो थोड़ा मेंटली ऐसा लगता है कि इतने टाइम से अभी एक सब्जेक्ट भी नहीं हुआ है, एंड यू इफ यू कीप मैथ्स पूरा लास्ट में देन दैट विल ऑल्सो बी वेरी टफ फॉर यू, क्योंकि मैथ्स का भी अच्छा खासा वेटेज है। सो जस्ट डू इट टॉपिक वाइज, राइट ऑल द टॉपिक्स एंड यू कैन कीप ऑन कैंसलिंग। सपोज यू डिड एलए देन यू डिड प्रॉब, फिर 1-2 हफ्ते बाद फिर कभी सेट थ्योरी कर लिया, कभी ग्रुप कर लिया, ऐसे करके यू कैन डू for maths. But yes, maths is important and it is scoring also. So try to finish it. Like it's I feel like all 10 subjects finish तो सब करना पड़ता है. तो the best way would be to do it topic wise बीच बीच में, क्योंकि they are not even like interrelated. ऐसा भी सारे नहीं है कि आप ये करोगे तो ये समझ आएगा. तो you can do it ऐसे topic wise. Yeah, thank you so much. Yes, Shri, best of luck. Uh, okay. Hi Dipanshu. You can unmute yourself. Yes. Yeah. Hello, ma'am. Am I audible? Yes, Dipanshu, you are audible. Yeah, ma'am. Good evening. Yes, good evening. Yeah. So, मैम मुझे ये पूछना था कि मैंने अभी जस्ट लास्ट वीक ही कोर्स किया है Okay. गो क्लासेस से। तो Mm-hmm. मतलब डिस्क्रीट मैथ्स तो बहुत बड़ा है, मतलब लेंथी बहुत है, तो Right. मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कुछ बता सकते हो आप प्लीज, मतलब जो स्टार्टिंग में कर लेना चाहिए ताकि अगर बीच में थोड़ा थोड़ा करके भी करे तो हो जाए। See, discrete maths ऐसे important तो as such सारी चीज़ें important है। As I said कि syllabus you have to cover पूरा ही। Like ऐसा होता है कि कभी ग्राफ थ्योरी से क्वेश्चन आ गया, कभी हर टॉपिक से नहीं आता, बट यू नेवर नो कि कौन से वाले से आ जाएगा। तो इफ़ यू वांट टू, इट डिपेंड्स ऑन योर स्ट्रैटेजी। इफ़ यू वांट टू डू, इफ कि आप पहले थोड़े से टफ वाले या फिर थोड़े ज़्यादा मैथ्स एंड कैलकुलेशन हेवी सब्जेक्ट्स आपको पहले करने हैं, then you can start with linear algebra. Are you preparing for CS? यस मैम, सीक्स। हाँ, तो आई फ़ील लाइक मॉड्यूल 1 इज़ स्टिल वेरी लाइट, ऐसे कुछ बहुत टफ नहीं है। इफ़ यू डू इट, इट्स वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। आई थिंक यू विल एन्जॉय इट अगर आप टाइम देके करोगे। तो आप एक पार्ट एट अ टाइम लो, पूरा डिस्क्रीट मैथ्स ऐसे मत देखो ये फिनिश करना है। सारे टॉपिक्स एक जगह लिख लो, बिकॉज़ आई सम वे इट डज़ वो मेंटली थोड़ा हेल्प करता है। तो आप सपोज़ आपने लिख लिए सारे टॉपिक्स, नाउ अगर आपको हाँ थोड़े जी। से लेंदी टॉपिक्स पहले करने हैं, देन आई वुड सजेस्ट कि आप एलए कर सकते हो या फिर प्रोबेबिलिटी कर सकते हो, या फिर कैलकुलस इज स्टिल स्मॉल, तो आप ऐसे कैलकुलस बीच में कर सकते हो। तो दीज आर ऐसे मैथ्स वाले। अगर आपको फिर इंजीनियरिंग मैथ्स से लेने हैं, देन इजी से स्टार्ट करना है, तो सेट वाला टॉपिक इज ईजियर। देन ग्राफ थ्योरी इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग, ग्रुप थ्योरी भी है। ऐसे ये तीनों मतलब ये सारे ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। तो डू इट टॉपिक वाइज। अगर आपको ऐसे करना है कि थोड़े बहुत इतना मैथमेटिकल हैवी नहीं चाहिए एंड यू हैव टू कवर दोज सब्जेक्ट्स जो मैथमेटिकल हैवी नहीं है, देन आप ऐसे कर सकते हो। और थोड़ा सा मैथ्स वाले सब्जेक्ट्स पहले करने हैं जो थोड़े ज़्यादा टाइम टेकिंग हो सकते हैं, देन यू कैन स्टार्ट विद एलए एंड प्रोबेबिलिटी। उसमें भी इफ़ यू हैव टू पिक समथिंग ईजियर, देन आई गेस कैलकुलस इज ईजियर, बिकॉज इसमें इंटीग्रेशन इतना ज़्यादा नहीं है। तो limits, continuity, or all these things are doable. And even I would tell you that maybe initially आपने LA या फिर ऐसा कुछ करा है? अच्छा, you have just taken the course, right? यस Dipanshu. मैम। हाँ, तो I'll tell you with my experience. I used यस to मैम। feel यस। कि this linear algebra is, too big, because I think sir ने जब start किया था तभी, like he started with explaining system of equations. So I thought that how will I be able to do it? क्योंकि वो लगता है थोड़ा challenging, और सचिन सर ने start भी हाँ अच्छे जी लेवल मैम। से किया है। वो बट वो सिर्फ लगता है, जैसे उन्होंने एक्सप्लेन किया है ना, यू विल रियली एंजॉय द सब्जेक्ट। एंड नाउ आई फील लाइक, मतलब एलए तो मेरा सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। प्रोबेबिलिटी आई फील लाइक आई मे बी मैं कुछ कुछ भूल गई होंगी, बट एलए इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, बिकॉज नाउ आई एम डूइंग मशीन लर्निंग। तो उसमें जो भी एलए आती है, तो आई एम सो कंफर्टेबल विद इट बिकॉज ऑफ द कोर्स दैट आई डिड। तो और मॉड्यूल 1 तो उसमें और भी ईजी है, तो इट लुक्स
चैलेंजिंग, बट आप बस जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस, आगे का मत देखो, जस्ट टेक इट वन लेक्चर एट अ टाइम एंड यू विल अंडरस्टैंड। और जैसे ही लेक्चर खत्म हो रहा है, आप एक दो लेक्चर्स के बाद आई वुड से कि आप एक बार पीपीटी जो भी एनोटेटेड नोट्स की होती है वो भी देख लिया करो, बिकॉज आगे के लेक्चर्स ऐसा कभी कभी होता है आप देखे जा रहे हो एंड देन आप पीछे का भूल जाते हो। तो एलए में क्या है, आपको हर चीज समझ आनी चाहिए, आपने जो स्टार्टिंग के 5 लेक्चर में पढ़ा है वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए आगे के लेक्चर समझने के लिए। लाइक सीएस में क्या होता है, अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, सब टॉपिक्स होते हैं। लाइक मे बी अगर आप डीएल डिजिटल लॉजिक ले लो, तो आप अगर सीक्वेंशियल सर्किट कर रहे हो तो आपको आगे कॉम्बिनेशन वाले, आना चाहिए। हाँ कॉम्बिनेशनल हाँ हाँ। में, मतलब मे बी इतना नहीं, सीक्वेंशियल कर रहे हो तो उसके बाद मे बी एक टॉपिक है नंबर, उसमें नंबर सिस्टम या जो भी कन्वर्जन वाला होता है, फ्रॉम वन ओके। फॉर्मेट टू अनदर। तो इसमें इतना इंटरलिंक नहीं है, आप टॉपिक वाइज कर सकते हो, बट इधर मैथ्स में क्या है, जो आप स्टार्टिंग में कर रहे हो वो आपको एंड तक याद होना चाहिए, वरना आपको बाद का समझ नहीं आएगा। बट इट इज एक्सट्रीमली सिंपल, आई डोंट थिंक कि एलए आपको इससे ज्यादा अच्छे से कहीं से समझ आ सकता है। प्लस आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना, यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट सॉल्विंग क्वेश्चंस यहाँ से, या फिर कोई ऐसा प्री रिक्विजिट्स नहीं है जो आपको पहले से करके जाना है। आप सिर्फ बस लेक्चर समझने के माइंडसेट से बैठोगे तो आई थिंक यू विल रियली enjoy the subjects. It's very well taught. All the three, ये जितने भी है maths related, probability, calculus, and linear algebra. All these three are extremely well taught from the very basics. And don't worry if you think कि आपको ज़्यादा लग रहा है, because initially I think everyone feels the same. Even I thought कि LA seems so tough. How will I able to do it? But like these are the subjects that you won't even forget. अगर आप lectures ढंग से कर रहे हो, उसी time revise करते रहो, you will not be forgetting it. ओके। और ओके। इसको भी आई वुड सजेस्ट कि एक एक करके करो, लाइक इफ यू आर डूइंग एलए नाउ, या तो फिर एक सीएस का सब्जेक्ट कर लो, उसके बाद फिर आप प्रोबेबिलिटी करो। इट्स, आई मीन इट डिपेंड्स, क्योंकि इकट्ठे इतना सारा मैथ्स करना भी, इट कुड बी एग्जॉस्टिंग कि आप पूरा थ्योरी कर रहे हो फिर पूरा मैथ्स कर रहे हो। सो इफ यू पुट अ मिक्स ऑफ सब्जेक्ट्स देन इट्स इंटरेस्टिंग आई फील। ओके। ओके दीपा, एनी अदर क्वेश्चन दीपांशु, और कुछ आपको पूछना हो? आई कांट हियर यू दीपांशु। ओके, देयर हेलो। इज, हाँ, यस हाँ दीपांशु। सॉरी मैम, सॉरी, कनेक्शन थोड़ा हाँ, इट्स सा। ओके। और ओके। कुछ, एनी अदर हाँ। क्वेश्चन? हाँ मैम, मैं एक पूछना था कि रिवीजन स्ट्रैटेजी कैसे होनी चाहिए, मतलब थोड़ा बता सकते हैं आप कैसे रिवाइज करते थे? हाँ, तो रिवीजन का, बिकॉज़ मैं नोट्स नहीं बना रही थी, तो आफ्टर एवरी लेक्चर, हर तो नहीं, मतलब अगर मैंने आज दिन में ऐसे फर्स्ट हाफ में, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग से लेके मैं लेक्चर्स कर रही होती थी, राइट? तो अगर मैंने हाँ। 11-12 नून तक जितने भी लेक्चर्स देखे हैं, यूजुअली ऑफ कोर्स एक ही सब्जेक्ट के होते हैं, तो मैंने एक सब्जेक्ट के अगर 5 लेक्चर्स देखे, देन मैं नेक्स्ट 2 आवर्स दूँगी कि मैं वो पाँचों के एनोटेटेड नोट्स पूरे देख लूँ। क्योंकि वो एक बार अगर आप लेक्चर करने के बाद देख लेते हो ना, देन आप जब भी नेक्स्ट रिवाइज करोगे वो आपको मेसी नहीं लगेगा, बिकॉज सर जो भी पढ़ा रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, वो उसमें होता है, राइट? तो अगर आप बहुत दिन बाद देखोगे देन इट विल बी टफ फॉर यू टू अंडरस्टैंड। बट दिस आई गारंटी कि अगर आप लेक्चर देखने के बाद ही वो नोट्स समझ रहे हो, तो आपको रिविजन के टाइम पे वो बिल्कुल भी मेसी नहीं लगेगा। प्लस इट विल हेल्प यू, बिकॉज एक तो आपको नोट्स नहीं बनाने पड़े, दूसरा आप कोई भी पॉइंट मिस नहीं कर रहे। जब आप वो पीडीएफ के थ्रू रिवाइज करते हो तो यू basically revise every point that was being taught. तो I used to make a folder of all my notes। अगर जो भी 10 सब्जेक्ट है तो सबका एक फोल्डर है, CNOS ऐसे करके, उसके अंदर फिर सारे सीक्वेंस में पीडीएफ डाउनलोडेड है। नाउ इफ मेरे 3-4 सब्जेक्ट्स हो गए हैं तो अगेन आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आपको चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक है? दैट्स द पॉइंट। नाउ अगर आपको एक बार रिवाइज़ करने पे याद हो रहा है या 2 बार, 3 बार, दैट डिपेंड्स ऑन यू। तो 1 टाइम तो बहुत मिनिमम है कि 1 टाइम तो आपको ऑफ कोर्स पूरा लॉन्ग नोट्स के साथ रिविज़न करना है। तो इफ मैंने 1-2 सब्जेक्ट करे, जब मुझे लग रहा है कि अब मुझे रिवाइज़ कर लेना चाहिए, तो आई यूज्ड टू ओपन, जैसे अगर एक सब्जेक्ट के सपोज़ 20 पीडीएफ्स हैं, देन आई यूज्ड टू ओपन ऑल 20 इकट्ठा, और फिर एक-एक करके फिर मैं पूरा सब्जेक्ट एक बार में ही रिवाइज़ करती थी। पर्सनली रिविज़न मैं इकट्ठे करती थी, तो दैट्स हाउ आई डिड इट। ओके ओके ओके। अब हाँ, तो अगर यस।
मैम ये बताना कि मतलब टेस्ट कितने चैप्टर होने के बाद देने चाहिए, जो होते हैं ना टॉपिक वाइज और वो मिक्स मिक्स सब्जेक्ट तो टेस्ट। हाँ राइट, जी। तो देखो सबसे इम्पोर्टेंट तो पीवाईक्यू है, तो पहले आपको हम्म। पीवाईक्यूज करने हैं सारे। अगर आपने सपोज कंप्यूटर नेटवर्क और ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट किया था, ये दोनों कंप्लीट हो गया, तो पहले आप इसके पीवाईक्यूज पे फोकस करो, क्योंकि पीवाईक्यूज भी बहुत सारे हैं। सीएस का एग्जाम तो बहुत टाइम से हो रहा है, तो काफी सारे पीवाईक्यूज हैं। तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए कि आप पीवाईक्यूज सब कर रहे हो। उसके लिए आप मैम क्या ये कर सकते हो? ऑनगोइंग के साथ करने चाहिए क्या, चैप्टर पूरा खत्म होने के बाद एक साथ करने चाहिए आई मतलब वुड पीवाईक्यू? सजेस्ट कि एक कंप्लीट हो जाए सब्जेक्ट, उसके बाद ही पीवाईक्यू स्टार्ट करो। क्योंकि ओके। व्हाट हैपेंस इज कि एक तो लेक्चर्स के बीच में भी आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि एकदम ही क्वेश्चंस नहीं है, कुछ तो पीवाईक्यूज भी सर कराते हैं, कुछ यस सिमिलर मैम क्वेश्चंस यस। कराते हैं, राइट? तो पर हम्म। क्योंकि क्या होता है, ऐसे डिपेंड करता है, कुछ टॉपिक के कम क्वेश्चंस है पीवाईक्यू में, कुछ के ज्यादा है, तो एटलीस्ट आप एक पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट कर रहे हो, तो आपके पास कुछ वैरायटी है सॉल्व करने की। ठीक है, तो 1-2 ओके। सब्जेक्ट स्टार्टिंग में कंप्लीट करने के बाद फिर पीवाईक्यू करो। नेक्स्ट के जब आप मॉड्यूल्स पढ़ रहे हो, उस टाइम पे 2 घंटे फिक्स कर लो कि इसमें मुझे पीवाईक्यूज या दिन के इस टाइम में मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा। तो एंड आप एक चीज कर सकते हो, जो मैंने थोड़ा लेट स्टार्ट की थी, बट आप स्टार्टिंग से ही कर सकते हो, कि फिक्स कर लो कि आपको दिन के 20 क्वेश्चंस तो करने ही हैं पीवाईक्यू के। ठीक है, तो आप ऐसे ओके। करके अपनी स्ट्रीक मेंटेन कर सकते हो। तो वो फिर एक माइंडसेट बन जाता है कि आप फिर कितने भी थके हो, यू फील लाइक कि नहीं मुझे 20 क्वेश्चंस करने हैं। तो फिर अगर जैसे आगे चलते-चलते आपके सपोज़ 5 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए, तब आपके पास काफ़ी फिर पीवाईक्यूज़ है करने के लिए, राइट? तो आपका हाँ अगर जी। कभी आपको एग्ज़ॉस्टिंग लग रहा है, तो आपका जो ईज़ियर टॉपिक है, सब्जेक्ट वो वाला है जो आपको पसंद है, तो आप उसके पीवाईक्यूज़ कर सकते हो। बट आप एट लीस्ट 20 क्वेश्चंस तो कर ही रहे हो। तो 20-25 जितने आपको करने हो, तो ऐसे करके एक फ्लो यू हैव टू मेंटेन। तो पीवाईक्यूज तो इम्पोर्टेंट है, आई एम नॉट सेइंग सब्जेक्ट वाइज इम्पोर्टेंट नहीं है, बट पीवाईक्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बेसिक्स के लिए। उसके बाद सब्जेक्ट वाइज करो आप, जब आपने पीवाईक्यू कंप्लीट कर लिया एक सब्जेक्ट का, उसके बाद यू मूव टू द सब्जेक्ट वाइज एंड टॉपिक वाइज टेस्ट। ओके। एंड नॉट ऐसे बिल्कुल खत्म करके भी नहीं है। अगर आपने जैसे एक्चुअली टॉपिक वाइज टेस्ट तो आप तब भी दे सकते हो। सपोज आपने एक टॉपिक कंप्लीट किया, जो भी मॉड्यूल है उसका, यू फिनिश अ टॉपिक, उसके बाद उसका टॉपिक वाइज टेस्ट है, तो टॉपिक वाइज टेस्ट तो आप तभी दे सकते हो। ओके मैम। आपका भी रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि आपने उसी टाइम कर कर रखा है वो टॉपिक, राइट? तो उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आई गेस 45 मिनट्स का होता है एक टेस्ट। यस मैम। तो आपका एक पूरा टॉप, राइट, तो 15 समथिंग क्वेश्चंस होते हैं। तो जैसे ही आपका एक टॉपिक खत्म हो रहा है, टॉपिक वाइज टेस्ट तो आप उसके साथ में ही दे दो उसी टाइम, दैट वुड बी बेस्ट। और जो क्वेश्चन नहीं हो रहा, वो आप लिख लो ऐसे कि इस सब्जेक्ट का, इस मॉड्यूल का ये क्वेश्चन, ऐसे पूरा क्वेश्चन ऑफ कोर्स मत लिखो, वो एक डायरी में नोट करते रहो। और तो क्वेश्चन लिख लिया आपने, दिस मॉड्यूल दिस क्वेश्चन नंबर, एंड उसके बाद इफ यू फील लाइक आपने कोई ऐसी मिस्टेक करी है जो विच यू शुड नॉट बी रिपीटिंग अगेन, या कोई नया टॉपिक ऐसा है जो आपका कुछ नया सीखा हो आपने, या कुछ ऐसा है जो आपको टफ लग रहा है, तो वो फिर आप अपनी एरर नोटबुक में लिख के रख लो, टू रिवाइज लेटर ऑन। तो टॉपिक वाइज आई वुड से कि उसी टाइम दे दो, फिर वो आपको हैवी नहीं लगेगा। क्योंकि अगर आप पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट कर रहे हो, फिर एंड में अगर आप फिर उठा रहे हो टॉपिक वाइज टेस्ट, क्योंकि मेरे साथ यही हुआ था, राइट? तो फिर आप सारे टॉपिक वाइज नहीं कंप्लीट कर पाओगे, क्योंकि एंड में आपको फुल लेंथ मॉक देना होता है, एआईएमटी देना होता है, तो यू डोंट गेट टाइम। और उस टाइम आई रियली फेल्ट लाइक कि आई विश आई हैड मोर टाइम टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। तो टॉपिक वाइज आप हैंड टू हैंड कर लो जैसे ही खत्म हो रहा है। फिर आपका एक सब्जेक्ट खत्म हुआ, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी अगर 2-3 है, तो एटलीस्ट एक तो आप उसी टाइम दे दो। ठीक है, एंड देन पीवाईक्यू करो, और जस्ट बीच में कभी रिवीजन के लिए आप कर सकते हो। एंड नोट्स का रिवीजन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपके दिमाग में बस ये होना चाहिए कि आपको आप 2 बार लेके चलो, कि आपको सारे 10 सब्जेक्ट 2 बार रिवाइज करने ही हैं। मतलब ऐसा टारगेट लेके चलोगे, तब जाके आप एटलीस्ट एक बार कर पाओगे। तो थोड़ा-सा आपको टारगेट भी थोड़ा-सा स्ट्रिक्ट और टफ थोड़ा सेट करना है, एंड ऐसे रिवाइज करना है। ओके। थैंक ओके यू। दीपांशु, या वेलकम। Now there is a last raised hand, but your name, I don't think आपने अपना correct name डाला है। Motorola, I think आपके phone का है, whoever this is. Yes, हेलो मैम। yes, hi. मैम मेरा नाम रिया है। मैम मैं Okay, 2020 की पास आउट हूँ, और मैंने okay, 23, 24, 25, 26 ग्रेड दिया है।
ओके लेकिन जी। मेरा मार्क्स जो है तो बिल्कुल भी इम्प्रूव नहीं हो रहा है। मतलब बहुत ही ज्यादा गंदे मार्क्स आते हैं, 19 नंबर, 12 नंबर, 15 नंबर। तो मैं मतलब कंफ्यूज हूँ कि मुझे गेट करना भी चाहिए या नहीं। मतलब मैं इस लायक हूँ भी नहीं। बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं, लेकिन मैं मतलब गिव अप, पता नहीं क्यों, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरा तरीका सही नहीं है। तो लेकिन मैं छोड़ नहीं पा रही हूँ गेट को। मतलब और कुछ घर वाले बोलते हैं कि एसएससी वगैरह कुछ और नॉन टेक साइड हम्म। कोशिश करो, लेकिन मेरा नॉन टेक साइड मन ही नहीं लगता। बार बार गेट का ही मतलब आ जाता है पढ़ने के लिए। लगता है कि शायद और किसी तरीके से पढूं तो शायद कुछ मार्क्स इम्प्रूव हो और मैं इसी फील्ड में जा पाऊँ। हूँ सीएस बैकग्राउंड से ही। ओके। एंड आपने अब तक कहाँ से प्रिपेयर कर रहे थे आप? मैंने तो अनअकैडमी से पहले पढ़ा था, गो क्लासेस का भी पढ़ा है। तो अभी मतलब कि पूरा नहीं पढ़ा है। अभी जैसे सर लोग शेड्यूल भेजते हैं तो उसको फॉलो तो करती हूँ, लेकिन कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पा रही हूँ। यही कंफ्यूजन की वजह से कि कभी एसएससी का सोचने लगती हूँ, कभी गेट का। ऐसा है। तो आप इस टाइम फर्स्ट टाइम एनरोल कर रहे हो गो क्लासेस वाले में? हाँ मैम। ओके। तो ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये दैट ऑफ कोर्स सी आई नो कि अगर इतने टाइम से मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे देन डिमोटिवेटिंग लगता है, बट सी अगर इफ आई मीन आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन एनी एग्जाम, बट आई फील अभी हम देख ही रहे हैं कि सारे एग्जाम्स का क्या हो रहा है, लाइक विद पेपर कैंसिलेशंस ऑल दिस। तो वैसे तो आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, बट ऐसे मेरे दिमाग में अभी आया, ऐसे न्यूज़ पे देख रही थी अभी हाँ फॉर yes, ma'am। एसएससी। तो या तो सम ऑफ माय फ्रेंड्स क्योंकि प्रिपेयर कर रहे थे फॉर एसएससी, तो यू नो आई सी द सिचुएशन इज रियली बैड देयर। बट एनीवेज, तो देखो आप अपने एक चीज तो मैं पहले ये बताना चाहूंगी दैट अभी तक अगर आप जहाँ से भी पढ़ रहे थे, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी मे बी कि आपका स्ट्रैटेजी सही ना हो, क्योंकि अगर आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है, देन अगर आप डिसाइड कर रहे हो कि आपको ये वाला गेट देना है, देन आप इस माइंडसेट से दो कि दिस इज द लास्ट टाइम, कि यू नो ये आखिरी बार आप गेट अपनी पूरी फुल एफर्ट लगा के दे रहे हो। तो वैसे सोच के दो, क्योंकि बीच में जो इधर ये वो एग्जाम्स आ रहे हैं ना, तो इस पे डिस्ट्रैक्ट हो गए तो फिर वो वाले एग्जाम्स का भी नहीं होगा, और फिर गेट में भी फिर से, क्योंकि ऑलरेडी जब इतनी बार दे चुके होते हैं तो हमें खुद ही इतना थकान और टायर्ड फील होता है कि, बट ठीक है, तो वो एक आपको एक्स्ट्रा एफर्ट अपने एंड से देना पड़ेगा, क्योंकि गेट देने के बाद आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी। अगर आपको आगे एमटेक नहीं भी करना है, तो फिर पीएसयूज भी होते हैं जो रिक्रूटमेंट करते हैं, जो दूसरे एग्जाम्स, काफी सारे एग्जाम्स होते हैं, डायरेक्ट नॉट डायरेक्ट इंटरव्यू होता है बट स्टिल, तो जितने भी पीएसयूज अपने अलग एग्जाम भी कराती हैं, उनका जो भी सिलेबस है वो गेट से ही ओवरलैप होता है। इनफैक्ट वो उनका लेवल तो गेट से और ईज़ी होता है, काफ़ी ईज़ी होता है, क्योंकि उनके में टाइम कम होता है, क्वेश्चन ज़्यादा होता है। बट अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हो, तो वो एग्ज़ाम्स आपको टफ नहीं लगेंगे। तो गेट के बाद आपके पास ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं, ठीक है? अगर आपको सीधा जॉब भी लेनी है, राइट, या आपको आगे एमटेक करना है, तो हर चीज़ के लिए आपके पास ऑप्शंस रहेंगे। तो आपका गेट के लिए प्रिपेयर करने का सोचना इज़ करेक्ट, आई अंडरस्टैंड। तो बस आप थोड़ा पहले तो ये माइंडसेट आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा दैट आप अपने दिमाग में ऐसा सोच सकते हो कि ये आप ये वाला जो अटेम्प्ट दे रहे हो, ये आपका फुल एंड फाइनल होगा, ठीक है? वैसे सोच के अपना 100% दो। एंड अभी फिर और किसी एग्ज़ाम के बारे में या फिर ये सब मत सोचो। इट्स नॉट लाइक कि गेट ही ऐसा कुछ मुश्किल है। अगर आपका स्पेशली टेक्निकल साइड में इंटरेस्ट है, राइट? तो एक तो ये है कि आपका इंटरेस्ट ही नहीं और आप दे रहे हो, देन फिर आई कांट और नो वन कैन से एनीथिंग। बट अगर आपको लगता है कि आपको टेक्निकल साइड में इंटरेस्ट है, देन आप कर लोगे इस 1 साल में। एंड द रीज़न आई एम सेइंग दिस कि मुझे तो ऐसा लगा था जब मैं लास्ट ईयर प्रिपेयर कर रही थी, तो मैंने जितना भी पढ़ा था, अगर मैं गो क्लासेस के यूट्यूब के वीडियोज़ जो मैंने एंड में देखे हैं, मैं एक दिन में 8 या 10 घंटे का लेक्चर मतलब देखती थी टोटल। नहीं, 8 घंटे तो मैं बैठ के देख रही हूँ, एक्चुअल में वो
4 घंटे की वीडियो मैं 2 घंटे में देख के मतलब 15-16 घंटे की वीडियोज़ मुझे देखनी पड़ती थी। तो अगर मैंने वो ना देखा होता, तो फिर मेरी भी रैंक जो अभी आई है वो नहीं आती है। इट्स तो ऐसा नहीं है कि बस आपने एनरोल कर लिया इधर तो आपकी रैंक आ जाएगी। ऑफ़ कोर्स आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बट आपके पास जो भी रिसोर्सेज़ हैं, वो बिल्कुल सही हैं। आपको इसके अलावा कहीं और सोचना नहीं है। आपको कुछ नहीं सोचना कि अब और क्या करूँ, इतना हो गया क्वेश्चन्स कहाँ से करने हैं, ये कहाँ से देखना है। आपके पास मॉड्यूल है, आपको बस एक बार में ऐसे खुद को थोड़ा मेंटली रिलीफ देने के लिए आप सोच सकते हो कि बहुत सब्जेक्ट्स भी नहीं है, सिर्फ 10 ही हैं, राइट? तो आप एक बार में एक सब्जेक्ट करो, उस पे ध्यान दो बस और आप आगे का मत सोचो। मतलब एक बार ही बस सोच लो कि आपको गेट देना है, उसके बाद फिर इधर-उधर मत डिस्ट्रैक्ट हो। क्योंकि जब मैं भी तैयारी कर रही थी और स्टार्टिंग में अगर मेरे दिमाग में रहता कि मैंने अपनी तैयारी 1-2 हफ्ते लेट शुरू करी और बट मैं फिर ये श्योर होके करा था कि मुझे अब प्लेसमेंट की तैयारी नहीं करनी, मुझे ये सब एग्ज़ाम्स का नहीं सोचना, मुझे गेट ही देना है। तो मैंने तैयारी देर से शुरू करी बट मैं श्योर थी कि मुझे गेट ही देना है। तो वो माइंडसेट बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आप 3-4 महीने गेट में घुस जाओ, उसके बाद फिर आप सोचो अब नहीं करूँ, तो आप अपने पहले का टाइम भी वेस्ट कर रहे हो। तो वो आपका ही टाइम वेस्ट होगा। तो एक बार आई वुड से कि मतलब आप स्टिल सोचो अगर आपको जेन्युइनली गेट देना है तो उसके बाद का मैं बता सकती हूँ व्हाट यू कैन डू। तो आप 10 सब्जेक्ट में एक बार में 1 लेके चलो। सारे लेक्चर्स बिल्कुल अच्छे से देखो कि आपको हर एक चीज़ समझ आनी चाहिए। अगर आपको समझ नहीं आ रही देन आप कनेक्ट करो, सर से कर सकते हो या फिर किसी से भी प्लेटफ़ॉर्म पे। अगर आपको चीज़ें जेनुइनली नहीं समझ आ रही तो उसी टाइम पे आस्क फॉर हेल्प। उसी टाइम लिखो कि आपको नहीं समझ आ रहा तो आपको क्या करना चाहिए। वो आपको तब पता चलेगा आप एक बार प्रॉपर मतलब स्टार्ट करते हो तब। क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली तो आप लेक्चर आराम-आराम से देखोगे तो आपको आएँगी चीज़ें समझ। बट कई बार नहीं भी आती हैं, तो उसके लिए आप इंस्टेड ऑफ खुद में ही ट्राई करना आई वुड से दैट आप यू शुड आस्क फॉर हेल्प। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो एक तो आप वो करो, उसके बाद एक सब्जेक्ट पूरा हो गया, फिर आप दूसरा सब्जेक्ट भी वैसे ही करो, फिर पिछले वाले की पीवाईक्यूज़ करो। पीवाईक्यू करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने नवंबर तक सारे 10 नहीं तो चलो 9 सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए और सबके पीवाईक्यूज़ कर लिए और एक बार रिविज़न पूरा कर लिया, ठीक है? तो देयर इज़ नो वे कि आपकी रैंक नहीं आएगी। और आप खुद सोचो आपके पास आपको 9 सब्जेक्ट करने हैं, आपके पास मॉड्यूल बाय मॉड्यूल पूरा कंटेंट है, आपको अलग से कुछ नहीं लाना। आपको ये नहीं सोचना कि कहाँ से पढ़ूँ, कौन-सा कोर्स लूँ, आपने ले लिया, आपके पास है। आपके पास पीवाईक्यूज़ भी आपको दे रखे हैं एक जगह सारे सब्जेक्ट वाइज़ पीवाईक्यूज़ हैं। तो आपको बस 9 या 10 सब्जेक्ट पूरा लेक्चर खत्म करना है। आपको पीवाईक्यूज़ उस सब्जेक्ट के सारे करने हैं। पीवाईक्यूज़ में टाइम लगता है जब फर्स्ट टाइम करते हैं तो डिमोटिवेट मत होना कि पीवाईक्यूज़ नहीं हो रहे क्योंकि सब्जेक्ट करने के बाद भी कई बार पीवाईक्यूज़ नहीं सॉल्व होते। तो उसमें डिमोटिवेट होने की जगह आप ऐसा सोचो कि अब आपने एक न्यू क्वेश्चन सीखा है। अब अगर ये एग्ज़ाम में आएगा तो आप कर लोगे क्योंकि है ना? तो अगर आप कोई भी टेस्ट दे रहे हो लाइक मेरे साथ होता था जब मॉक टेस्ट में मेरे कम मार्क्स आते थे या फिर मुझसे काफ़ी क्वेश्चन नहीं होते थे, तो मैं ऐसा सोचती थी कि अब मैंने सीख लिया, अब जैसे 5 क्वेश्चन मुझसे नहीं हुए, तो अब मैं 5 नए टाइप के क्वेश्चन गेट में कर सकती हूँ। तो आप उस माइंडसेट से सोचो और हाँ, तो इतना ज़्यादा एक बार में मत सोचो कि टेस्ट, पीवाईक्यू, सब्जेक्ट सब करना है। आप बस चीज़ें समझने पे फ़ोकस करो और फिर पीवाईक्यूज़ करो। अगर इतना भी नवंबर तक हो गया, तो इट इज़ वेरी गुड। आपकी रैंक ऑफ़ कोर्स आएगी अगर आप सब समझ रहे हो लेक्चर्स और पीवाईक्यूज़ समझ के कर रहे हो, ठीक है? पीवाईक्यूज़ नहीं भी बन रहे, तो उसको ऑनलाइन सर्च करो बट ट्राई कि आपको पूरा समझ आ जाए, ठीक है? तो ये हो गया, उसके बाद अगर टाइम मिल रहा है तो जो भी सब्जेक्ट वाइज़ टेस्ट हैं, टॉपिक वाइज़ टेस्ट है जो मॉड्यूल के बीच में आ रहे हैं, आप वो भी दो, ठीक है? एंड उसके बाद जब मॉक टेस्ट शुरू होंगे फिर नवंबर से अ, जब आपका सिलेबस 8-9 सब्जेक्ट आप कर लो, उसके बाद फिर आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करना और इसमें भी ख़ैर वो तो बाद की चीज़ है बट उसमें भी आई वुड से कि पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट करने के बाद भी फर्स्ट मॉक में कभी मेरे तो सिर्फ़ 28 नंबर आए थे, जब मैंने मॉक 1 दिया था, एआईएमटी नहीं जो मॉक था वो दिया था, कुछ मेरे 28 नंबर आए थे और फिर उसके बाद गेट में मेरे 72 थे। तो वो मार्क्स बढ़ेंगे बस और वो कितने में ऐसे मॉक तो मैंने नवंबर एंड में दिया था पहला मॉक, तो वहाँ से लेके तो मेरे पास ऑलमोस्ट 2 ही महीने थे, राइट? तो ऐसे स्टिल मेरे मार्क्स 28 टू 70 गए, बट वो सिर्फ़ 2 महीने की बात नहीं होती, इट्स दैट कि मैंने पहले से हर एक
सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो आपने चीज़ें समझी हैं, तो मार्क्स आपके इंक्रीज़ हो जाएँगे। तो आप पहले तो चीज़ें समझने पे फ़ोकस करो, एंड चीज़ें समझना मतलब लेक्चर्स देखना एंड पीवाईक्यूज़ करना। यस मैम। ओके, एंड आई वुड स्टिल से कि आप अभी भी रश में स्टार्ट करने से अच्छा, जो आप अपने लिए सबसे अच्छी चीज़ कर सकते हो, इसकी आप 3-4 दिन या 1-2 दिन एटलीस्ट आप बैठ के सारे ऑप्शंस लिखो कि आप ये पाथ लोगे तो क्या होगा, ये करोगे तो क्या होगा, और आप देखो यस। क्योंकि चैलेंजेस आपको हर फील्ड में ही मिलेंगे, लाइक, है ना? यस इनफैक्ट मैम। मुझे तो लगता है बाकी सबसे गेट इज़ स्टिल वे ईज़ियर, क्योंकि फिक्स है, एटलीस्ट एग्ज़ाम तो हो रहा है, कि आप अगर आपने मेहनत की तो आपको रिज़ल्ट मिलेगा, उसके बीच का कुछ नहीं है फिर। राइट, यस मेहनत मैम। कर रहे हो, चीज़ें समझ रहे हो, तो आपको रिज़ल्ट का आइडिया लग जाता है कि आपका हो जाएगा। तो आप 1-2 दिन बैठो एंड डिसाइड करो, एंड इफ यू स्टिल चूज़ कि आपको गेट देना है, देन व्हिच आई वुड से इज़ द राइट ऑप्शन, तो फिर आप ये वाली स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हो। यस मैम। और ओके, मैम मुझे ऐसा भी लगता है कि अगर एमटेक करना मेरे लिए अगर कठिन होगा, मतलब कोडिंग वगैरह अगर मैं नहीं कर पाऊंगी, मतलब हुँ, अभी ऐसा लगता है, तो अगर हुँ, मैं गेट एक बार, मतलब मैं ये सोचती हूँ कि कम से कम मेरा गेट में 50-60 भी मैं ला लूँ तो मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी। अगर एमटेक नहीं करूंगी तो कोई जॉब ले लूंगी पीएसयू वगैरह में, इंटरव्यू वगैरह दे हुँ, करके। तो इसलिए मुझे हुँ, ये थोड़ा सही लगता है, क्योंकि एसएससी हुँ, में थोड़ा ज्यादा भीड़ है और इधर कम टाइम में हम लोग को मतलब ज्यादा क्वेश्चंस करने होते हैं। थोड़ा ये भी लगता है, ये चीज हुँ। प्रॉब्लम थोड़ा कर। हाँ, सी देखो, अगर आपको एमटेक नहीं करना, एक चीज़ और है दैट आप थोड़ा अलर्ट रहना, कुछ पीएसयूज़ के फॉर्म होते हैं जो अलग, जैसे आई थिंक लास्ट ईयर एक मैंने इसरो का दिया था, तो उसका एग्ज़ाम ऑलरेडी सितंबर में हो जाता है, थोड़ा डिले हुआ था तो अक्टूबर में हुआ था। तो यू हैव टू बी अलर्ट, जो भी अलग से एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराते हैं, उसका देखते रहना कब आ रहा है। और एक जो मैं आपको रियलिटी चेक दूँगी ऑनेस्टली इज़ दैट कि पीएसयूज़ भी क्रैक करना इज़ नॉट दैट ईज़ी, क्योंकि वैकेंसी बहुत कम होती है। लाइक इफ मैं बार का देखूँ तो मतलब बहुत ही कम लोग सिलेक्ट होते हैं। आई गेस एक ईयर का मैंने देखा था कि अप्रॉक्स 7 या 10 ऐसे काफ़ी कम लोग सिलेक्ट होते हैं, और उसके बाद भी इंटरव्यू भी कंडक्ट होता है। इट्स नॉट कि आपका फुल्ली टेस्ट के बेस पे हो रहा है। ये मैं बस आपको एक रियलिटी चेक दे रही हूँ, सो दैट यू नो कि यू नो व्हाट यू आर गेटिंग योरसेल्फ इनटू। तो गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें ऑफ कोर्स ईज़ी हो जाएँगी, आपके पास बहुत ऑप्शंस होंगे। बट वो सारे ऑप्शंस का मतलब तभी है जब आपकी गेट की तैयारी स्ट्रांग होगी, क्योंकि अगर आपने अभी जितने भी 10 सब्जेक्ट हैं ये आपने बहुत अच्छे से करे हैं, तो वो इंटरव्यू क्रैक करना या फिर वो जॉब्स क्रैक करना आपके लिए ईज़ी होगा, राइट? तो तैयारी आपको अच्छे लेवल की ही करनी होगी, ठीक है? दैट्स व्हाट आई वांट टू से कि उसके बाद आपके इंटरव्यूज़, टेस्ट सब कुछ हो जाएगा, एंड बहुत ऑप्शंस रहते हैं गेट के बाद। सो इट्स जस्ट दैट कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल की होनी चाहिए, यस मैम। राइट? ओके, आई यस फील लाइक 1 घंटा अभी हो गया, सो नेक्स्ट व्हाटएवर इट इज़ वी कैन डिस्कस इन द नेक्स्ट मेंटरशिप सेशन इफ दैट इज़ फाइन बाय ऑल ऑफ यू, राइट? क्योंकि थैंक। हाँ, ओके, सॉरी राम एंड Krish, I see you have raised hands. I'm very sorry, but I feel like कि अभी you know एक okay, last, okay fine Krish, we can go with one last question of yours and then we will wrap up and next वाले में कर लेंगे. Yes, Hello, ma'am. Am I yes audible? Krish है. Yes Krish, you are. हेलो मैम, आई एम क्रिश। सो Hmm. मैं अपने प्रिपरेशन के बारे में थोड़ा आपको जल्दी से ब्रीफ देना चाहता हूँ। Hmm. आई एम फुल टाइम ड्रॉपर। सो Okay. मेरे ऑलरेडी काफ़ी सारे एक सब्जेक्ट कंप्लीटेड है एंड Hmm. मेरे अभी सिर्फ 4-5 सब्जेक्ट ही बाकी है, लाइक लेक्चर कंप्लीशन एंड नोट्स बनाने में। तो लास्ट टाइम के Hmm. अटेम्प्ट में मेरा मतलब मिस्टेक ये था कि मैं सिर्फ लेक्चर ही देखता जाता था, नोट्स बनाता था, लेकिन मैं पीवाईक्यूज़ नहीं करता था। फिर एंड Hmm. में आके मुझे पता चला कि ये मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। फिर मैंने 2 या Hmm. 3 सब्जेक्ट के ही पीवाईक्यू करे थे। तो मैंने उस Hmm. टाइम पे कोई वीकली क्विज़ या टॉपिक वाइज़ टेस्ट नहीं दिया था। लेकिन इस टाइम मैं सब फॉलो करूँगा। सो एज़ दीपक सर एंड गो क्लासेस सजेस्ट दैट after subject completion we go with PYQ, then all weekly quizzes, then topic wise test. So मुझे थोड़ा Hmm. confusion and doubt ये है कि मेरा एक थोड़ा पैटर्न है कि PYQ करने में मुझे थोड़ा बहुत ज्यादा टाइम लगता है। मुझे आ जाए PYQ फिर भी मैं स्क्रॉल करके मतलब इन डेप्थ जाता हूँ गेट ओवरफ्लो में। सो Hmm. मुझे ये है कि फिर ऑल वीकली क्विज में लगाओ, फिर टॉपिक वाइज सब लगाओ।
तो मतलब मेरा हो पाएगा कि नहीं, मुझे मतलब कैसे मैनेज करना चाहिए ये? सी अगर आपको सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग है पहले से, देन आपके लिए काफ़ी हेल्प करेगा वो। तो पहली चीज़ जो आपने भी अपनी मिस्टेक आइडेंटिफ़ाई करी इज़ दैट लास्ट ईयर देखो, अगर आप सिलेबस इनफैक्ट पूरा गो क्लासेस का भी देख के जाओगे ना, कि आपने मतलब बिल्कुल बेस्ट लेवल क्वालिटी लेक्चर्स देखे हैं, पर आप अगर उसको क्वेश्चन में अप्लाई नहीं कर पा रहे, जो कि आप नहीं कर पाओगे अगर आपने क्वेश्चंस नहीं किए, तो दैट्स द रीज़न अगर आपकी अभी अच्छी रैंक नहीं आई थी, तो क्वेश्चंस वाज़ द रीज़न। बट साथ में देखो, आपको पीवाईक्यूज़ यू हैव फर्स्टली तो यू हैव टाइम, अभी गेट में जितना टाइम है, यू विल बी एबल टू कंप्लीट एवरीथिंग। तो आपके जो भी सब्जेक्ट के लेक्चर्स बचे हैं, ठीक है, यू स्टार्ट डूइंग दैट, क्योंकि इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो। तो जब आप लेक्चर्स कर रहे हो, उसके साथ जो आपके 3 4 5 जितने भी सब्जेक्ट्स हो गए हैं, फर्स्टली आई फील लाइक कि अगर आपसे डायरेक्ट पीवाईक्यूज हो रहे हैं तब तो अच्छा है, इफ नहीं हो रहे तो गिव सम टाइम इन रिवाइजिंग दोज ऑल्सो। तो आप या तो ऐसा कर सकते हो कि आपने पहले के जो सब्जेक्ट्स हो रखे हैं, वो आपने 2 सब्जेक्ट सपोज रिवाइज कर लिए, ठीक है। नाउ आपने न्यू जो भी सब्जेक्ट है, यू हैव स्टार्टेड दैट। तो जो पिछले आपके सब्जेक्ट्स हो गए हैं, वो सेम पैरेलली करो, न्यू सब्जेक्ट के लेक्चर्स और क्वेश्चन प्रैक्टिस एक ही दिन में रखो, क्योंकि आपको लेक्चर्स तो देखने ही है, बट एट द सेम टाइम आपको वो यूज टू होना चाहिए क्वेश्चंस करना, क्योंकि जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करते हो ना, वैसे ही आपकी स्पीड बढ़ती है। स्टार्टिंग में आपको ज्यादा टाइम लगेगा, बट एज एंड व्हेन यू कीप डूइंग क्वेश्चंस, तो आप यूज टू हो जाते हो और आप क्वेश्चन को विजुअलाइज करने लगते हो। जैसे क्वेश्चन रीड करते ही आपको आपका दिमाग सीधा उस डायरेक्शन में जाते हो कि ये चीजें गिवन है, ये निकालना है, ऐसे करके। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एक्चुअल गेट एग्जाम जब आप दोगे तब। तो यू शुड, एज आई सेड, आप नया लेक्चर कंटेंट देखना स्टार्ट कर दो, उसके साथ पहले वाले के पीवाईक्यूज आप करो। एंड इसमें यू कैन मेक क्योंकि आपके इफ यू हैव डन हाफ ऑफ द सिलेबस ऑलरेडी, तो आप फिक्स कर लो कि आपको दिन के 25 क्वेश्चन एटलीस्ट करने हैं, ठीक है। वो आप मिक्स्ड ऑर्डर में कर सकते हो, एक ही सब्जेक्ट से कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। तो नाउ क्या होगा कि आपके पास एक टारगेट है। अब आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप 5 ही क्वेश्चन में पूरा दिन दे दो, क्योंकि आपको 25 क्वेश्चंस तो करने ही है। तो पहले एटलीस्ट आप 25 सॉल्व कर लो, उसमें अगर आपको लग रहा है कि इस टॉपिक में या फिर इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा और देखना है, तो आप सर्कल कर लो इस क्वेश्चन को, या फिर लिख लो कि इस पेज नंबर का ये क्वेश्चन, एंड देन आप बाद में फिर उस पे जाओ। क्योंकि ये जो हमारे पैटर्न्स होते हैं ना, वी हैव टू चेंज दैट। लाइक फॉर मी एक पैटर्न था कि एग्जाम में अगर मैं कोई मॉक टेस्ट दे रही हूँ, ठीक है, उसमें जो मैंने आइडेंटिफाई किया दैट वाज कि एक क्वेश्चन पे अगर मैं स्टक हो गई, तो लाइक मुझे लग रहा है क्वेश्चन हो जाएगा, तो मैं उस पे फिर टाइम दिए ही जाती हूँ, कि वो एक ऐसे मेंटली लगता है कि बस ऑलमोस्ट हो ही गया तो फिनिश कर देती हूँ। बट उसमें जो 5 मिनट्स वेस्ट होते हैं, उस चक्कर में 2 3 मार्क्स का गैप आता है, और उससे फिर बहुत ज्यादा रैंक पे फर्क पड़ता है। तो आपको ऐसे पैटर्न्स, पहली चीज है कि आइडेंटिफाई अगर करना इज द फर्स्ट स्टेप। उसके बाद यू हैव टू गेट ओवर इट, यू हैव टू गेट अहेड ऑफ इट, आपको बीट करना है। तो अब आपको पता चल रहा है कि ऐसे करने से आपका टाइम जा रहा है, राइट। तो आप फॉलो करो, एज आई सेड, कि क्वेश्चंस फिक्स कर लो कि आपको इतने क्वेश्चंस करने ही है पर डे। उसके बाद टाइम मिलेगा तब आप जाके उस पे और रिसर्च करोगे। और अगर आपसे कोई हाँ। क्वेश्चन जेन्युइनली खुद से सॉल्व नहीं हुआ, उसके बाद ही जाके उसका डिस्कशन पैनल और ये सब देखो, और वो सब देखने के साथ भी फिर या तो अपनी स्पीड बढ़ाओ, क्योंकि क्वेश्चंस तो आपको पीवाईक्यू सारे करने हैं। उसके बाद अगर आप कोई नया सब्जेक्ट पढ़ रहे हो विच वाज नॉट स्ट्रॉन्ग बिफोर, तो आप टॉपिक वाइज टेस्ट उसके बाद भी दे सकते हो। अगर 5 6 लेक्चर्स के बाद एक 45 मिनट्स का टेस्ट है ऑफ दैट टॉपिक, तो वो आप उस टाइम भी अटेम्प्ट कर सकते हो। मैम थैंक यू, आपने जो भी पीवाईक्यू के बारे में बोला वो, लेकिन मेरा एक्चुअल में मेन ये क्वेश्चन था कि पीवाईक्यू आपने कहा वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो क्या मुझे सब्जेक्ट कंप्लीशन के बाद सारी वीकली क्विज खत्म करनी चाहिए और उसके बाद टॉपिक वाइज टेस्ट देना चाहिए? मतलब आपने वीकली क्विज सारी दी थी, मतलब वो इम्पोर्टेंट है। सी इम्पोर्टेंट तो बहुत ज़्यादा है। आई एम नॉट सेइंग कि पीवाईक्यू ज़्यादा, आई कुड नॉट गिव ऑल द वीकली क्विजेस, क्योंकि मैंने लेट, एज आई सेड ना, गो क्लासेस मैंने लेट स्टार्ट किया था, अक्टूबर में मैंने एनरोल किया था टेस्ट सीरीज में। बट इतना मैं गारंटी कर पा रही हूँ कि जितने भी क्वेश्चंस डिफरेंट आए थे एग्जाम में, जो टफ थे, जैसे कुछ क्वेश्चंस
थे जो दूसरे यूट्यूब पे दूसरे प्लेटफॉर्म्स भी उसका गलत सोल्यूशन दे रहे थे, बट मैंने वो सही सॉल्व किया था क्योंकि मैंने वो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट और जो भी मैंने एक दो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दिए थे उसमें मैंने देख रखा था। तो पीवाईक्यूज तो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि देखो फर्स्ट प्रायोरिटीज की वो क्वेश्चंस गेट अथॉरिटीज इतने सालों से बना चुकी हैं, राइट? तो एक वो चीज़ है कि वो तो आपको करना ही करना चाहिए। और पीवाईक्यूज ये है कि आपने एक सब्जेक्ट कर लिया, उसके पीवाईक्यूज क्योंकि ये अब तक के आ चुके हैं गेट में, तो आपको भी एक अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं या फिर आप मैप कर पाते हो जो भी थ्योरी आपने पढ़ी है उसको पीवाईक्यू से, ठीक है? तो इस वे में कहते हैं कि पीवाईक्यू इम्पोर्टेंट है, बट सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसके क्वेश्चंस बहुत अच्छे लेवल के होते हैं। आप वो अगर सॉल्व कर रहे हो देन अगर खुद से सॉल्व नहीं भी हो रहे, आप सॉल्यूशन भी देख रहे हो बाद में, तो आपको उससे जो सीखने को मिलेगा वो लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी आपके गेट एग्जाम में स्टैंड आउट करने के लिए, क्योंकि पीवाईक्यूज तो बहुत लोग करके जा ही रहे हैं ना, तो वो तो मतलब बेयर मिनिमम है यू कैन से, बट इट्स नॉट दैट सब्जेक्ट वाइज टेस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ऑफ कोर्स पीवाईक्यूज आप पहले करो, उससे आपका एक ग्राउंड फाउंडेशन बनेगी, उसके ऊपर आप कितने सब्जेक्ट वाइज टेस्ट करके ऊपर बिल्ड कर पा रहे हो, दैट इज अप टू यू। तो डेफिनेटली पॉसिबल नहीं है कि आप हर 10 सब्जेक्ट के सारे ही टेस्ट कर पाओ। इट डिपेंड्स, कुछ लोगों की स्पीड होती है वो कर पाते हैं, तो जितना मैक्सिमम हो पाए डू इट। और अभी से फर्स्टली पूरा भी डोंट, बिकॉज अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर अबाउट कि क्वेश्चंस कब करना है एंड ऑल दैट, तो आई वुड जस्ट लाइक टू रिमाइंड ऑल ऑफ यू कि लेक्चर कंप्लीशन पे भी बहुत फोकस करना, वो आपको बहुत फोकस से देखने हैं। तो जब आप लेक्चर्स देख रहे हो उस टाइम पे और कुछ मत सोचना कि क्या रैंक ये वो, बिकॉज व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग मैंने साइड का कुछ नहीं देखा था, आई डिडंट इवन नो कि कट ऑफ क्या है, ये सब नथिंग, आई जस्ट रियली यूज्ड टू एंजॉय द लेक्चर्स। तो एक वो एंजॉयमेंट होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, देन यू विल गेट द रैंक, ठीक है? तो अगेन टू समराइज, पीवाईक्यूज आर द फाउंडेशन, क्योंकि इट मेक्स सेंस, राइट? गेट अथॉरिटीज इतने टाइम से क्वेश्चंस दे रही हैं तो आप वो तो करने ही पड़ेंगे आपको। उसके ऊपर जितने आप टॉपिक वाइज आई वुड से कि टॉपिक खत्म होते ही दे पाओ तो इट्स गुड। 45 मिनट्स का है, आप 30 मिनट्स में ट्राई करो कि जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो दे दियो और जो नहीं आ रहे वो सोल्यूशन देख के फिर लिख लिया वट एवर लर्निंग्स यू फाउंड। तो वो लर्निंग्स आपको स्टैंड आउट करेंगी गेट एग्जाम में। ओके, मैम थैंक यू इतना इन डेप्थ आंसर के यस, लिए। थैंक यू। ओके, सो रेस्ट जो भी क्वेश्चंस है लेट्स डिस्कस दोज इन द नेक्स्ट सेशन। Sorry if if आप end तक रुके थे and I could not pick up the question because I think 1 hour में wrap up भी करना था। So but next time I'll I have seen the names, so next time we can start with you all's questions. Okay, all right, bye everyone, best of luck for the preparation to all of you. Good night.